I'm firstly, Assalamu alaikum, Sare, everyone joining. How is everyone? I'm so sorry. I was coming back from gym, and I know we had a 5:30. Of course, I didn't account for the incredible amount of people out on the streets because of cricket, and I like phas gaya. No, no, no. Of course, that's fine. I could see कि आप जब gym पे थे तो आप stories post कर रहे थे. I understood that you were there. It was मैं usually gym हर रोज जाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है but on a Sunday on a Saturday मेरे पास थोड़ा वक्त होता है ज़्यादा so I really get Yeah. as much of a workout तो मैं gym में usually गुम हो जाता हूँ because I really like working out तो उसमें बस वक्त का पता नहीं चला and by the time I came back I So was late. you're sort of a fitness buff. I could tell that from like your stories and your grid and everything. I'm a happy healthy life buff. मुझे लगता है कि जिंदगी हमारी जो है वो बड़ी जरूरी है आपको अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है अपने सेहत का अपनी डाइट का अपने दिमाग का एंड मैं इस पर Yeah. बड़ा कंसंट्रेट करता हूँ और आप जैसे आपने कहा थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन मैं बहुत Of course. शौकीन हूँ ढेर सारे काम करने का और उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. And we can also just tell from like the energy that you give off. Like I think you're one of the most accessible celebrities that we have, and that's so nice, honestly. Like just being able to approach somebody through Instagram, I think that's very, very unique. And like I don't think a lot of people are available like that. देखिए मैं बड़ा जिंदगी में मेरी सिंपल सी उसूल है कि जिंदगी में अगर आपने किसी चीज पे भी सक्सीड करना है चाहे जिंदगी में कुछ भी हो आप सेलिब्रिटी बनना चाहें आप अकाउंटेंट बनना चाहें आप कुछ भी बनना चाहें आपको तीन चीजें याद रखनी है और उनके ऊपर आपने अमल करना है एक है इखलाक आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए द वे यू ट्रीट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वही लोग जिनको आप कदम लेके आप ऊपर बढ़ रहे हैं ना वही आपकी मदद करेंगे जब आपको जिंदगी नीचे भी आना होगा तो इखलाक बड़ा जरूरी है. दूसरी चीज हमदर्दी. अब मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अल्लाह इज वेरी काइंड टू मी मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना आई एम सो इनक्रेडिबली ब्लेस्ड मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के साथ हमदर्द ना हो हर बंदे का एवरीबडी वांट्स to have access to have information and I'm nothing without my fans I'm nothing without you guys I'm nothing without to actually want to do an interview with me so मैं क्यों ना हूं. एंड आखिरी चीज नियत आपकी नियत साफ होनी चाहिए मैं आपको बताऊं अगर आपकी नियत साफ हो ना आपकी एनर्जी हमेशा साफ रहेगी आपको कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा सो दीज आर थ्री थिंग्स दैट आई एम अ बिग बिलीवर एंड मैं वो So हमेशा करता good. हूँ. Oh my God, that's amazing. Acha, so like you just spoke about being accessible. So we just got a comment from somebody saying, how can we meet HSY? वेरी सिंपल गाइस अगर आप लोग कभी मिलना चाहें मैं यूजुअली अपने स्टूडियो होता हूँ best is to get an appointment call up the studio number you can go to the world of HSY and get in touch with my team is like me as well we are very accessible we like to be accessible हम लोग ऐसी कोई चीज बनाते नहीं हैं जिसकी वजह से हम ना accessible हम कोई we're in fashion is for you and I'm Yeah. in movies and television that's for you as well so of course I'm going to be accessible आए मिलें हमें और you get to know us. Of course, and like speaking of your movies, I've Ishwar Made in China का trailer आ रहा है कल. We've already seen the teaser. It looks super super interesting. Your character looks super interesting. जो हमने पहली सी मोहब्बत में अकरम देखा था उससे बहुत ज़्यादा different है. I think they're like on opposite sides of the poles. So can you like how much can you reveal about your character or the film in general, Abhi? All I can tell you is this that the इसमें जितनी हार्ड वर्क हमें डालना पड़ा मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतना काम करना होगा. मोहिब एंड माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हमने अपने स्टंट्स खुद किए और ये बहुत ही एक स्टंट हैवी फिल्म है. इसके अंदर ढेर सारे स्टंट्स हैं ढेर सारा Yeah. एक्शन है वो स्टंट्स को सीखना अपनी वो सही तरीके से करना कि फिल्म इंटरनेशनल लेवल भी लगे बहुत बहुत मेहनत हुई. इसके गाने कमाल हैं कमाल आप लोग अगर देख रहे हैं ना इसके गाने सुनिएगा आप पागल हो जाएंगे सारे गाने बहुत अच्छे हैं इसके डांस सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं इसके फाइट सीक्वेंसेस कमाल हैं इसके लोकेशंस ऐसी हैं कि आपको पता नहीं आएगा ये समझ नहीं आएगा ये पाकिस्तान की फिल्म है और Do we इसके have a अंदर release सबसे date for the film yet? जी Do we have a release date for the film yet? अभी नहीं पता. कल पता चलेगा आपको Oh, कल पता चलेगा. That's so nice. Okay, I'm कल super पता चल interested. जाएगा और बहुत जल्दी आ रही है बहुत जल्दी. Oh, oh, is it one of the films coming out on Eid? I have a feeling. I think it might even be sooner. Oh my God. Yeah, I But think it might even be sooner. Eid's in like 2.5 months, something like that. This might Okay. be out before that.
अच्छा, so you spoke about like doing the stunts yourself, and वो हमें दिख भी रहा था कि काफी ज्यादा action sequence है, fighting भी है आपकी और मोहिब की. You sort of seem like the last samurai that Mohib's character has to fight through before like he gets what he wants. So like how did you guys pull that off? Were you guys trained for like the stunts and everything that happened? Yes, we were trained for the stunts. Yeah. उसने Mohib is an incredible director. कमाल Mhm. का डायरेक्टर है वो. बहुत डिटेल ओरिएंटेड है और इसके साथ काम करने का मुझे बहुत मजा आया. इसके अंदर सबसे मजे की चीज है कि जब उसने स्टंट लोग बुलाए तो हमें बहुत लंबी ट्रेनिंग ना सिर्फ मूवी से पहले हो रही थी मगर मूवी के साथ साथ भी वी वर ऑलवेज ट्रेनिंग ऑलवेज ट्रेनिंग. Mhm. मैं आई थिंक 3 महीने तो मैं ट्रेनिंग में ही लगा रहा कि ट्रेनिंग आई गॉट I had to go to the hospital 3 times because मुझे इतनी चोटें Oh लग my चुकी थी doing my own stunts. It was hard and we're not God. little Yeah. hard. Like ऐसा इतने मुश्किल stunts थे कि मैं आपको बता नहीं सकता मगर Oh करने my का God. बहुत मजा आया. और इसके साथ look who I was working with. Sanam Said, Mohib, Ali, Ali Kazmi, Sarah Yeah. Loren, Shamoon, who I respect Shamoon so much. Shamoon was in the film. काम इतने लोगों के साथ करने को मिला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ. देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक चीज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं फैशन में जाऊं इतने सालों बाद भी मगर मैं इसको बिल्कुल आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो जब मुझे Mhm. ऐसी मूवी का जब रोल आया वो भी इस तरह का रोल आई वाजंट टेकिंग इट लाइटली. आई थॉट यार ये मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है. लोग Yeah. कहेंगे कि यार HSY फिल्म कर रहा है. So I didn't want to take it lightly. I thought no, I must prove myself. So we Yeah. worked really hard. And then was this also something that you planned or like wanted to do something eventually? Yeah, bas mauka mila and like role offer hua, so it was something that you said, okay, let's try this. Or like because we do have a feeling that you're sort of inclined towards acting वैसे भी वो पहली सी मोहब्बत से हमें पता चल गया. But like of course, films are a very different ball game altogether. Yeah, listen, the film that I did, I always wanted to do films and act. वक्त नहीं था मगर शौक हमेशा था. अब शौक के साथ मैं बताता चलूं कि मैंने थिएटर किया हुआ है बहुत ज्यादा. अपने बचपन में Oh, आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ माय ड्रामेटिक सोसाइटी. आई हैव won बेस्ट एक्टर इन थिएटर कॉम्पिटिशंस. ये मुझे लगता था कि oh मैं my God. करूंगा. From Ibsen to Shakespeare to Urdu dramas to Yeah. musicals. मैंने अपने बचपन में बिफोर फैशन सब कुछ किया हुआ है और मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्टर बनूं मगर उस वक्त क्या हुआ कि वो आ गया फैशन की जब दुनिया में आया तो फैशन तब था नहीं इतना ज्यादा और उस इंडस्ट्री को मैं नहीं कहूंगा कि मैंने बनाया है मगर मैंने मेहनत बहुत की है साथ उसको बनाने में. तो उसके अंदर बड़ा वक्त लग गया मगर जब ये रोल आया इट वाज जस्ट अ परफेक्ट रोल एंड मैं बहुत खुश था बिकॉज मोहित ने जब मुझे फोन किया उसने कहा कि मैंने ये रोल लिखा ही है तुम्हारे लिए. ये लिखा गया है तुम्हारे लिए और कोई नहीं कर रहा तुम ही कर रहे हो. और ऐसा जब आपको कोई इतनी इज्जत दे आप नो नहीं कहते मगर जब मैंने मूवी पढ़ी और देखा मैंने कहा यार ये तो अल्लाह की तरफ से कोई बहुत ही मजे के कोई उन्होंने मेरी दुआएं जो है वो पूरी कर रहे हैं. इट वाज Yeah. ग्रेट. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अल्लाह करे जो आप लोग सारे देख रहे हैं आपको भी बहुत अच्छी लगे. बहुत जल्द आने वाली है मेरी फिल्म. And there's so much love pouring in for you in the comment section already. मैं भी पढ़ रही हूँ. I also just want to say कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, please यहीं पे comments में भेज दे and I will send that over I'm to Hassan. I'm I'm also reading these comments. There's Ali Bhatt who's saying thank you. Your great personality, Ali. Thank you so much. आप लोग सारे जो लिखते हैं ना मैं आपको बताऊं बहुत से लोग मुझे बहुत मैसेजेस भेजते हैं. मैं हर मैसेज पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ सबका जवाब भी लिखूं बट आई कैन नॉट टेल यू कि आप लोग कितने मुझे मेरा हौसला अफजाई कितना करते हैं. सो थैंक यू. Feroz, thank you so much for calling me impressive. That's very sweet. Thank you. Someone said, mark my words, you're going to rock. Wish you good luck. That's Nader Khan. नादिर बहुत शुक्रिया आपका. आके देखना जरूर फिल्म और बताना जरूर कि तुम्हें कैसी लगी. देखना जरूर. Speaking of films, आपकी एक टेलीफिल्म भी आ रही है that you recently signed with ARY Digital as, if I'm not wrong, you're the lead character in it. जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये खास मेरे लिए उन्होंने एक रोल बनाया और लिखा. और जिन्होंने लिखा है ये फायजा इफ्तिखार ने ये स्क्रिप्ट लिखी है. एंड फायजा इज वंडरफुल. उन्होंने पहले से मोहब्बत भी लिखी थी और उसके अंदर जी आई एम प्लेइंग मैं लीड रोल कर रहा हूँ. और बहुत ही किलर स्क्रिप्ट है ये मैं बताऊंगा. किलर स्क्रिप्ट और किलर किलर प्रोजेक्ट होने वाला है. और मेरे साथ और भी जो लोग हैं जिनको मैं भी कह नहीं सकता बता नहीं सकता वो भी नेक्स्ट लेवल है. लाइक नेक्स्ट लेवल कास्ट है ये. अगर आपको लगता है Of कि मेरी course. पहले वाली कास्ट जो थी वो माशाल्लाह से जी आई गॉट टू प्ले विद शबीर जान, सबा फैसल, शहरियार मुनव्वर एंड माया अली एंड राबिया Yeah. भट्ट एंड उस्मा एंड नौशीन. Amazing. But even in Yeah. this cast,
the cast is unbelievable. Okay, so you can't reveal the cast yet, but character के बारे में हमें कुछ पता चल सकता है because like we've seen Akram, now we're seeing you in Ishrat Made in China. तो ये क्या दोनों का mixture है या ये बिल्कुल opposite होगा? Is it something similar that we've seen already? Totally different, totally different. मेरा एक ही मकसद है एक्टिंग में कि that I'm able to do different character roles. देखें HSY के तौर पे हर बंदा मुझे जानता है, मगर मैं Yeah. चाहता हूँ कि अगर मैं एक्टिंग करूँ तो मैं HSY ना प्ले करूँ ना उसके आसपास कुछ करूँ. तो जो रोल्स मैंने किए हैं, जैसे कि मैंने पहले वो किया ऑफ द रिलीजियस एल्डर ब्रदर इन पहली सी मोहब्बत, और अब ये विलन का कैरेक्टर इन, ये टोटली पोल्स अपार्ट हैं. बट ये वाला जो है ये इससे भी बिल्कुल फर्क है, टोटली फर्क है. बड़ा इश्क करने वाला है, मगर किस तरह होगा, क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, ये आपको फायजा ही बता सकती है. We're और मैं super साथ साथ super. बताता चलो, our director, my God, I'm working with Bhatti Saab. He's amazing, one of the finest directors. ये बड़ी I'm super excited about this. So are we, so are we, and like there's so many more comments coming in. Somebody said that they just joined in. Can you brief them about the movie again? I'm actually going to save this live session, but if you want to go over it again, like by all means. So मैं एक किसी का जवाब देना चाहूंगा. किसी ने एक चीज लिखी हुई है of what I think about fat shaming. It's a very important subject. Body, जिस्म के बारे में जो गुफ्तगू है वो बड़ी जरूरी है, because हम लोग बहुत दफा लोगों के रंगत की वजह से या उनकी बॉडी शेप की वजह से या उनके ना बाल होने की वजह से उनको पिजन होल कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है. लेकिन ये मैं इतना नॉन बिलीवर हूँ इसके बारे में कि मैं बता नहीं सकता. There is no fat shaming. You're beautiful Yeah. just the way you are. जिस तरह भी आप हो ना, आप खूबसूरत हो, आप हसीन हो, आप अल्लाह के बनाए हुए इंसान हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो. आप ये फैंस, ये ट्रेंड्स, they're lovely as trends, but you're not a trend. आप ट्रेंड नहीं हो, आप हमेशा के लिए हो, आप you're a human being. So please don't let anyone ever shame you, and there should be no fat shaming. तो है ही नहीं ना fat shaming. तो जरूरत कैसे हुई किसी को कहने की कोई fat shame है? आप जिंदगी जियो, अगर हेल्थी जिंदगी जियो, जो भी करो अपने हेल्थ के बारे में जरूर सोचो, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है. अगर आप खुद फिट होगे, खुद अपना ख्याल रखोगे, तो दूसरे लोगों का ख्याल रख सकोगे. सो प्लीज मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हेल्थ वाइज एंड ऑल्सो मेंटली. हम लोग बहुत ज्यादा लोग जो है ना बात नहीं करते अबाउट मेंटल हेल्थ एक बड़ी इग्नोर्ड सिचुएशन है कि लोग डिप्रेशन में चले गए, oh something's wrong with her, or she's seeing or he's seeing a therapist, oh something's wrong with her. There's nothing wrong with them, nothing. The only thing that's wrong with is us thinking like that. You must take care of your mental health, your physical health, your health. You must put yourself first, because only if you're good, I assure you, मैं सच ही बताऊंगा आपको, अगर आप अच्छे हैं ना, अगर आप खुद अच्छे हैं, आप सबका अच्छा ख्याल रख सकेंगे. मगर अगर आप अच्छे नहीं हैं, तो आप ना अपने आप का ख्याल रख सकेंगे और ना किसी और का, और फिर उसका कोई फायदा नहीं. That's such a beautiful thought. And then Nader has sent in another comment. He says, yes, just because I'm bald, people usually make fun of me, but you're an inspiration. यार बॉल क्या, बाल लगे हैं तो ग्रेट, बाल नहीं है तो फिर भी ग्रेट, फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है. मैं इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता. अगर मुझे कोई ऐसी कोई बात कहता भी है ना, तो मैं यूजुअली एक थोड़ी देर सुनते रहता हूँ, उसके बाद मैं इग्नोर करके ऑफ कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. अपने आप को उसी एनर्जी में रखो जिस एनर्जी में तुम रखना चाहते हो. अगर तुम्हें लोग तंग कर रहे हैं और तुम्हें देखो, everyone has an option. They have to swipe right or go up and see another Instagram account. And if you don't like or someone's saying something, you don't have to constantly arguing back. Just block them. जो लोग दूसरे लोगों के बारे में तंजिया बातें करते हैं, वो usually खुद ही खुश नहीं होते. Hurt people hurt other people. So you don't have to be around those people. Let them figure it out, but you have to take care of yourself. And I also feel like it's not even just about like, being bald or something. Even if you have like a head full of hair, तो वो उनको कोई और चीज मिल जाएगी criticize करने के बिल्कुल लिए. बिल्कुल. तो मतलब it's just about a matter of like what people are gonna say, when are they gonna say it actually? Because वो बोलेंगे तो for sure. यार अगर कोई बंदा आपके बारे में कुछ कहता है, आप दफा करें, रहने दें. डजंट मैटर. आपको अपनी जिंदगी में लोगों को एडिट करना भी आना चाहिए, कि पता चले कि कब किस बंदे को चॉप करके निकाल देना है जिंदगी से. वो बंदा आपके लिए ठीक Yeah. नहीं है, उसको निकाल दें. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा. मेरी बहुत अच्छी दोस्त आमना वजीर इज ऑल्सो फॉलोइंग. उसने मुझे तालीक किया था. आमना, थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड यू आर वाचिंग. Somebody said, Sherry or Maya. I'm assuming they're asking like, who do you like better? Maybe it's just like Sherry or Maya, question mark. Maya and Sherry are both completely different but beautiful people.
शेरी इज अ ब्रदर टू मी, आई अडोर हिम, मेरे बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और माया, मुझे इवन तो हमारी दोस्ती रिलेटिवली न्यू है, मुझे लगता है कि माया मेरी हमेशा से मेरी फैमिली में थी। उसका जितना बड़ा दिल है और जितनी वो प्यारी है और जितनी वो अच्छी, जितनी वो दिल की अच्छी है ना, जितना वो हम सबका ख्याल रखती है, शी इज वंडरफुल। सो मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, सोने पे सुहागा था, बिकॉज आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, एंड मैं शबीर जान और सबा फैसल की इतनी इज्जत करता हूँ, मैं इतना लुकअप करता हूँ, एंड फॉर देम टू प्ले रोल विद मी और मुझे सिखा रहे थे, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। और राबिया भट्ट, जो आप लोग जानती हैं, राबिया हैज बीन वन ऑफ माय मॉडल्स फ्रॉम हर बिगिनिंग ऑफ हर करियर। रब्बो के Yeah. साथ मेरी ऐसी दोस्ती है, और मैं उसको रब्बो कहता हूँ, रब्बो के साथ मेरी ऐसी दोस्ती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इवन तो रब्बो एंड आई हैड ओनली वन सीन, हमारा एक सीन होता है जब मैं दरवाजा खोलता हूँ, कहती है क्या Mhm. मुसीबत है, कहते हैं मुसीबत तो Yeah. तुम हो बीबी, मुसीबत तो तुम हो। आ, मगर उसके बाद भी हम सेट पे ऐसा था कि जैसे एक स्कूल ट्रिप पे लोग नहीं निकले होते, उस तरह था काम, मेहनत बहुत थी। अंजुम Yeah. शहजाद इज अ Yeah. ग्रेट डायरेक्टर, एंड Uh-huh. हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अब्दुल्ला सीजा, जिनके साथ मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, इज थॉरली प्रोफेशनल, तो मजा बड़ा आया। बट या इट वाज फन। आप लोगों को समझ कैसा लगा प्ले? I, आपकी तो एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है. Okay, so there's बहुत two शुक्रिया। questions that I'm going to send your way. One of them says कि जो है how do you deal with criticism, and then the other one says you're always so energetic. Like, what's the secret behind it? क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म लेना अपने स्ट्राइड में बड़ा जरूरी है। लोग अगर Uh-huh. तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं तो तुम सीखोगे किस तरह? हम बड़ी दफा हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, मगर जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उसकी बात सुनता जरूर हूं, मगर मैं ये भी देखता हूँ कि क्रिटिसिज्म आ किससे रही है और उसकी एक्चुअली इंटेंशन क्या है, यानी कि नीयत क्या है उसकी। अगर उसकी नीयत ऐसी है कि मुझे लगे कि वो मेरे लिए सीखने के लिए है, तो मैं उसे जरूर सीखूंगा। अगर मुझे लगे कि वो ऐसी नीयत है कि मुझे पुट डाउन करने की कोशिश है, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, मगर उनको कुछ कहूंगा नहीं, बिकॉज वो भी ठीक है, जैसे आप वो कहना चाहें। हम किसी को रोक तो नहीं सकते, मगर जो हम अपने आप को प्रोसेस करते हैं ना इंफॉर्मेशन, वो हमारे हाथ में है। और तो मैं उससे उस तरह रहता हूँ। रह गया एनर्जी, मैं एनर्जी, मैं क्या कहूँ, लोग कहते हैं कि मेरी बड़ी एनर्जी है। आई गेस मैं इसलिए एनर्जी है कि मैं आई चूज टू बी हैप्पी। ये बड़ा एक जरूरी चीज है कहना, आई चूज टू बी Amazing. हैप्पी। क्या सैड होने की चीजें हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्या मुश्किल चीजें हैं जिंदगी में? बिल्कुल हैं। बड़ी तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, बड़े आजमाइशें होती हैं आपके साथ, मगर आपने जिंदगी को खुद चूज करना है कि आप क्या चाहते हैं उससे, और मैं उससे खुशी चाहता हूँ, तो मैं उसके अंदर खुशी लेके आता हूँ। सुबह उठता हूँ, और अगर आप लोग सुन रहे हैं और कर सकते हैं तो करने की जरूरत है आपको, बड़ा मजा आता है। मैं सुबह उठ के ना 10 चीजें गिनता हूँ कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। चाहे वो कि अल्लाह मियाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं देख सकता हूँ, अल्लाह मियाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे आगे चाय है और मैं पी रहा हूँ और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, और ये अल्लाह मियाँ मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी माँ मेरे घर पे और माशाल्लाह से अभी तक उनकी सेहत ठीक है, और अल्लाह मियाँ मैं ग्रेटफुल हूँ। इस तरह करके मैं सब कुछ गिनता हूँ, और ये 10 गिनने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो होता है ना, आप जिंदगी में थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं। मुश्किल जो होती है वो थोड़ी सी कम Yeah. लगती हैं। हम सबके पास मुश्किलें हैं, क्यों नहीं होंगी? हम लोग, ये जिंदगी है मुश्किल। ये तो गाना नहीं है, ये Yeah. जिंदगी है मुश्किल। बट बट आई चूज टू बी हैप्पी। That's such an amazing thought. Actually, मैंने ये शुरू किया था बीच में, like trying to count things that I'm grateful for, but I don't think मैं 10 तक पहुंचती हूँ. But like एक दो भी हो जाता है, I was like, okay, that's like a good start. ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट यार, बिल्कुल ठीक है। Speaking about like being privileged the way that certain people are, and then also trying to help others out, and उनके लिए आप जितना कर सकते हैं आप करें. You are obviously an ambassador for now PDP. आपने recently उन बच्चों के uniforms design किए थे. Then I think last March was the Tuk Tuk March that happened. Is that going to happen this March again? What's going on at that end? We Where would love to know about that. Yeah. नाउ पीडीपी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दैट हैज माय हार्ट। देखें, मैं एक खुद बड़ी टफ जिंदगी से जिया हूं मैं, आई नो व्हाट, बट व्हेन आई सी दीस चिल्ड्रन आई रियलाइज दैट आई हैड इट रियली इजी, एंड व्हेन Mm. आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी कैन डू टू हेल्प, आई फील इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू। बट उसके साथ साथ मैं Yeah. ये बताऊं, मुझे ज्यादा उनसे मिलता है वो जो बच्चे मुझे प्यार देते हैं और मुझे दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उससे मुझे लगता है कि मेरा उसमें फायदा है। हमने टुक टुक मार्च की, जो बच्चे नहीं चल सकते, जो पैराप्लीजिक हैं, जिनकी टांगे नहीं है, उनको हमने रिक्शे बनवा के दिए। हम बहुत से बच्चों को
स्पेशली द किड्स हु आर ब्लाइंड, वो सुन बहुत अच्छा सकते हैं। जैसे आप जानती हैं, मैं भी एक वक्त में मैंने अपनी आंखें आई साइट खो दी थी, तो मैं, क्योंकि मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग उनसे ड्राइंग्स ऐसी करवाते हैं जिससे वो पैटर्न्स बना सकते हैं, जो हम टेक्सटाइल कंपनीज को बेचते हैं कि वो अपने आमदनी कमा सकें। इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स Right. करते रहते हैं। अभी भी हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं नाउ पीडीपी के बारे में और आप किस तरह मदद कर सकते हैं, आप प्लीज हम हमारी इंस्टाग्राम साइट पे जाएं, नाउ पीडीपी, और आप पूछें कि आप किस तरह मदद कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी एक और भी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर इट्स यूजुअली अ रिक्वायरमेंट कि हर कंपनी के अंदर 3% ऐसे लोग हों जो डिसेबल हों, जो हमें डिसेबल लोगों को, पीपल विद डिसेबिलिटीज कहना चाहिए, सॉरी, जो वो काम कर सकें। मगर ये पुश करना, दिस इज माय काम। आई गो टू कंपनीज एंड आई मेक श्योर कि हम लोग इन सबको एक मौका दें। बड़े, इनकी बहुत बड़ी तादाद है, ओवर 30 मिलियन लोग हैं विद डिसेबिलिटीज, और इनको, इनका ख्याल रखना हमारा ही काम है। Of course. So, it's safe to say that the Tuk Tuk March is going to happen again this March because You'll it see was, I another, think, like, you'll see another march. You'll see another that's march. great. That's great. That's great. अच्छा, इस बार हमारे पास एक सवाल आया था कल जब हमने अपनी स्टोरीज पे लगाया था. Somebody wanted to know how did you start off your career? And by that, I think I'm assuming that they mean like your designing career and like, just how everything started off. यार, मेरी डिजाइनिंग की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। मैं क्योंकि अपने फैशन स्कूल के पैसे खुद देता था, चार चार नौकरियां कर रहा था उन दिनों में, तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, आई ग्रेजुएटेड एट वन ऑफ द टॉप ऑफ माय क्लास पोजीशंस, बट मुझे कोई हायर करने के लिए तैयार नहीं था। मैं जहां भी जाता था वो कहते या लड़के को हायर नहीं करना, या मैं उस वक्त तक कोरियोग्राफर बन चुका था, कहते यार आपका नाम बन चुका है, मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा था। तो मेरे हाँ. पास, मेरी जेब में सिर्फ 25,000 रुपए रह गए थे, सिर्फ 25,000। मेरे सारे अपने पैसे देने के बाद, स्कूल की ट्यूशन देने के बाद, मेरे पास 25,000 रुपए थे। 25,000 रुपए से मैंने 2,000 के जाके अपनी एक सोइंग मशीन नहीं होती रॉकेट की जो इस तरह चलती है, Yeah, yeah, yeah. हैंड पैडल, उसके अंदर मैंने हाँ, जाके हाँ. एक मोटर मोटर डलवाई। एक मास्टर साहब को कहा कि मुझे ज्वाइन करें, मैंने कहा मैं आपको तनख्वाह दूंगा, तनख्वाह के वो पैसे थे नहीं। और मैं घर पे आया, 500 के मैंने धागे और कैंचियां और ये वो चीजें ली, और अपने बिस्तर के मैट्रेस को उठाया, और उसके ऊपर जो फट्टा होता है ना, उसके ऊपर अपनी मशीन रख के, मास्टर साहब को रख के, मैंने कहा चले अब कपड़े सीते हैं। मगर कपड़ा ही नहीं था। उस वक्त अम्मी पढ़ाती थी स्कूल में, तो मैंने उनके हाँ. सारे पर्दे उतार दिए, उनकी शीटें उतार दी, और हर चीज करके काट कूट के मैंने पांच पांच जोड़े बनाए, 5 जोड़े। और मैंने कहा Okay. मेरा ब्रांड जो होगा उसका नाम HSY होगा। अब HSY क्यों हुआ? मेरा नाम है हसन शहरयार यासीन, मगर मैं अपने नाम की और हर बंदे के नाम की बड़ी कदर करता हूँ। मुझे लगता था कि Mhm. कहीं बाहर लोग मेरा नाम गलत ना कहें, हसन को हसान ना कहें, शहरयार को Yeah, शहरयार ना कहें, यासीन को yeah, याजिन ना कहें। तो मैंने कहा मेरा नाम कोई खराब ना हो, इसलिए मैं अपने नाम को HSY कहूंगा। और मैंने फिर 5 ही जोड़े बनाए। 5 ही जोड़े बनाने के बाद मेरे पास मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त अभी भी हैं, वो अभी मॉडलिंग में आ रही थी, और मैंने उससे फोन किया कि यार एक शूट करना है। उसने कहा हाँ करते हैं। और वो लड़की थी ईमान अली। और मेरी Oh, बहन के बहुत दो बड़े अच्छे दोस्त थे जो मेरे भी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अभी कुछ काम शुरू किया था। एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद, और हम इकट्ठे हुए oh, और हमने ये तस्वीरें खींची, एंड द रेस्ट अल्लाह का शुक्र इज हिस्ट्री। सो आई वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी लकी। एंड बट मैं ये इसलिए मैं स्टोरी आपको बार बार, लोगों को बार बार बताता भी हूँ और कहता भी हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि दे कांट डू इट, दैट दे वोंट बी एबल टू डू इट, जब तक उसका mhm. नाम ना हो, पावा ना हो, पर्ची ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल सच नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इफ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू इट, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल जिंदगी से ना डरें, आप अपनी जिंदगी के अंदर फंसे हुए ना कभी फील करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू बिलीव। अच्छा हसन, तो जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट ऑफ किया अपनी अम्मी की चादरों एंड पर्दों से एंड लाइक नो वन वाज रेडी टू हायर यू एंड ऑल ऑफ दैट, और अब माशाल्लाह से जो है वो आप वोग पे भी फीचर हो गए हैं, आपने जुनेद सफदर के कपड़े डिजाइन किए. हाउ वर दोस टू एक्सपीरियंसेस एंड लाइक हाउ डज इट फील इन जनरल टू बी एट अ पोजीशन वेयर यू आर माशाल्लाह सो influence other people with your work? देखिए, जहां तक रह गया रिकग्निशन का, मैं हमेशा हर रोज अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं। इस Mhm. बिजनेस में मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा है, बनते हुए देखा Yeah. है और जाते हुए देखा है। और मेरे होते हुए बड़े लोग आए हैं, बड़े लोग जाए हैं, और मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि ये ऑब्वियसली मेरी माँ की दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, मेरी माँ की दुआएं। और उसके साथ ये मैं कहूंगा कि रह गया लोगों को ड्रेस करना, मेरे पास, मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत तरह तरह के लोग आते हैं और अपने कपड़े बनवाते हैं और मैं उनके लिए डिजाइन करता हूँ। मेरी हमेशा ख्वाहिश क्या होती है कि मैं
उनको अंडरस्टैंड कर सकूं, उनको समझ Yeah. सकूं, उनके लिए ऐसी कुछ चीज बनाऊं जिसमें वो अच्छे लगे ना। ये नहीं कि वो स्टाइल क्या है। बहुत से लोगों का कहना है और सोच है कि एट ब्राइडल स्पेशली शादी पे आपको स्टाइलिश होना चाहिए, कभी यहाँ से स्लीव निकला हुआ है तो यहाँ फुनफुने निकले हुए हैं तो यहाँ ये निकला हुआ है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादी जो होती है ना जी, वो लड़का और लड़की की सिर्फ नहीं हो रही होती, वो दो खानदानों की हो रही होती है। टू फैमिलीज आर गेटिंग Mm-hmm. टुगेदर, एंड उसके For अंदर sure. लड़की ने क्या पहना है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ना सिर्फ उसके लिए मगर उसके माँ पियो के लिए भी। और जो लड़के ने पहना है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन उसके लिए भी और उसके माँ पियो के लिए भी। और ये जो लड़का और लड़की इकट्ठे हो रहे हैं उनको भी अच्छा वो चीज लगना चाहिए जो सारे खानदान को अच्छा लगे। इंस्टाग्राम पे क्या अच्छा लगता है, आपके 5-10 दोस्त क्या कहते हैं उनको इंप्रेस होता है, वो जरूरी नहीं है। आपके बड़े क्या Mm-hmm. सोचते हैं, आपकी चाची फुप्पी नानी दादी वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। यही हमारा कल्चर है, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, इनको इनको संभालना बड़ा जरूरी है। मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए जो आपने सारे नाम लिए मैंने यही देख के बनाया। मैं कोशिश करता हूँ प्रोडक्ट जो मेड इन पाकिस्तान हो। मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ। मुझे लगता है कि जितना मेड इन पाकिस्तान के शोर में जाए उतना ही कम है, बिकॉज पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है। और इसके साथ Bill. साथ मैं कपड़े वो बनाता हूँ जिसके अंदर एक थोड़ी सी मॉडेस्टी भी हो। हर चीज Mm-hmm. को कटपुट ये जरूरत नहीं है। हम मॉडेस्टी के अंदर भी बड़ी खूबसूरती है, कवरिंग के अंदर भी एक बड़ी एक हैसियत और बड़ा बड़ा प्यारा लग सकता है। एंड आई थिंक देयर इज अ ब्यूटी इन मिस्ट्री, एंड आई थिंक यू शुड लीव दैट अ लिटिल इन दैट वे। एंड शादियों पे आपको लगना चाहिए शहजादा और शहजादी। आपको मॉडर्न प्रिंसेस एंड फेरी टेल प्रिंसेस, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। उसके लिए बड़े और मौके हैं, आप हकीके पे पहने, किटी पार्टी से पहने, किसी किसी जीटी पे पहन लें, मगर शादी पे आप Yeah. लगे एक खानदानी शहजादी और शहजादा। क्या बात है? Somebody is asking, do you believe in किस्मत? बिल्कुल जी, बिल्कुल किस्मत तो है ही है। मगर उसके साथ साथ मैं बिलीव करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर अल्लाह की तरफ से आई है। तो जिसको इज्जत दी है आप उसको इज्जत दें। अगर कोई बंदा सक्सीड कर रहा है उसकी लेग पुलिंग ना करें, वो किसी वजह से है। ये हमारे हाथों में ये नहीं है ये चीजें। आप अपनी बस ये जैसे मैंने कहा नियत साफ रखें, इखलाक अच्छा रखें और हमदर्दी रखें, आपको चीजें वापस मिलेंगी। लोगों की बिजनेस, आपका बिजनेस, हर चीज दूसरे लोगों के प्यार की वजह से होता है। आपने वो प्यार बना के रखना है लोगों के साथ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री में चले लें या हमारे फैशन इंडस्ट्री में, टेलीविजन में, हमारे कुछ लोग जो अब एक सर्ट हर बंदा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट कुछ लोग बहुत जल्दी अपने आप को बहुत ज्यादा समझना शुरू हो जाते हैं। एक अना आ जाती है, एक ईगो आ जाती है। दैट इज द एंड ऑफ, आई बिलीव, द Yeah. longevity of your career. I think like not letting things get to your head, especially. अच्छा, somebody has joined us from India. किसी ने काबुल से हमें join किया है. That's amazing. You've got fans everywhere. Somebody's Thank you asking guys. about somebody's asking about co-natural products. Are they all organic? जी, कोर नेचुरल के प्रोडक्ट्स जहां तक मेरे उनके साथ ताल्लुक है वो है फ्रेग्रेंसेस पे। एंड Mm-hmm. फ्रेग्रेंसेस पे जितने हमारी the way we've made our products is probably Yeah. one of the cleanest ways to be able to make a product, so I'm very proud of that. मगर मैं कोर नेचुरल के बारे में ये जरूर कहूंगा कि उनके साथ काम करने का मुझे मजा बहुत आता है। They're very professional, they're very thoroughly dedicated to making the best product. बोथ मायरा और रीमा ना सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मगर मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं इस परफ्यूम के अंदर। वी आर वर्किंग ऑन इट टुगेदर, एंड इनके साथ Yeah. काम करने का लिटरली ऑन अ डे टू डे बेसिस इज ग्रेट। एंड मैं आपको बताता चलूं, इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर परफ्यूम्स, वी आर प्रोवाइडिंग एन अमेजिंग न्यू प्राइस फॉर वैलेंटाइंस। if you're interested, please go to Core Natural Fragrances and check it out. मगर आप चेकआउट जरूर करें, बिकॉज ये वो परफ्यूम्स हैं जो हमने बनाए ना सिर्फ आपके दिन के लिए शाम के लिए, हमने बनाए आपके हर पर्सनालिटी ट्रेट के लिए। खुशबू पहनना भी एक मजा है यार। और अपनी अगर अपनी खुशबू पहनी हो जो अपने यहाँ बनी हो, पाकिस्तान में बनी हो, इससे बेहतर और क्या है। Oh God, HSY और उनकी बातें बहुत प्यारी हैं. I agree with Jia Hashmi, if that's her name. Yes. थैंक यू जी आशमी, बहुत शुक्रिया। Somebody joined us from the UK. Acha, so we've talked about, like most of the things that you've done, but अब हम आते हैं HSY Productions पे, which is a creative agency जो नई नई start हुई. तो जी मतलब कैसे हो रहा है इतना सब कुछ एक साथ? यार, मैं काम करने का बहुत शौकीन हूँ और मुझे काम जिसमें मुझे पैशन हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा लकी हूँ, मेरे पास मेरी क्रिएटिव एजेंसी माशाल्लाह से we've signed one of the biggest all the big real fun projects that I wanted to sign
आप देख रहे हैं हमारे बिलबोर्ड्स भी आ रहे हैं, हमारे we're doing TVCs, we're doing जी we lose him. HSY, the brand is mashallah doing better than ever. लोग अब जिस तरह हमारे पास आते हैं और जिस फ्रीक्वेंटली हमारे पास बार बार आते हैं, अभी एक ब्राइड आई थी जिनकी वालदा के लिए भी मैंने ब्राइड बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिल्म में एज यू नो माय फिल्म इज कमिंग आउट, टेलीविजन आई अनाउंस, मैं इससे बेहतर और कुछ मांग नहीं सकता। मैं बहुत, जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं बार बार ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं बहुत लकी और बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मेरे पास मेरी माँ की रच के दुआएं हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वाह क्या बात है, मैं बहुत कोई बड़ी चीज हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। Somebody is asking how did you venture into acting, and then what gives you the confidence to pursue what you want? कोई आपको कहता है ना, अगर आपको कोई कहता है कि ये ना करो, you've never done it before, you've not done it Yeah, before, and that's why you should do it. yeah, Don't be scared. The worst thing that can happen to you is failure. अगर आप फेलियर से नहीं डरोगे तो आपको नहीं डर लगेगा। देखिए मैंने जीरो बड़ी दफा चखा हुआ है, बहुत दफा, और मैं इतनी दफा चखा हुआ है कि मुझे जीरो का टेस्ट रटा हुआ है। मैं जीरो से नहीं डरता। मैं yeah. जीरो से अगर डरूंगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। आपने भी नहीं डरना। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज को उसको अवेल ना किया, सो नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, आप कुछ गेन नहीं कर सकेंगे। और ये जिंदगी Mhm. क्या है, आप, सॉरी मैं ऐसे फलसफे दे रहा हूँ, मगर मैं आपको बताऊंगा No, जिंदगी no, का। no, that's completely fine. I think everybody is मैं loving it. मैं जब अपनी माँ के साथ बात करता हूँ ना, किसी के बड़ों के साथ बात करता हूँ, वो मुझे ये नहीं कहते कि यार, उनको ये याद रहेगा कि तुम ग्रेट डिजाइनर थे, या तुम ग्रेट ये थे, या ग्रेट वो थे। उनको सिर्फ एक चीज याद रहेगी, सिर्फ एक चीज, वो ये है कि आपने उनको कैसे महसूस कराया जब आप उनसे पहली दफा मिले। आपने उनको अच्छा महसूस कराया, आप उनको अच्छी तरीके से मिले, उनकी आपकी पहली याददाश्त कैसी होगी, उन लोगों को बस ये याद रहना है। ये तो इस पर आपने काम करना ही करना, because आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जब आपकी जिंदगी जब खत्म हो भी रही होगी, तो आपको ये याद Mhm. होगा कि मैंने जिंदगी में क्या क्या पाया, एक्सपीरियंसेस वाइज, पैसा वाइज नहीं, पैसा आपने कहाँ लेके जाना है, एक्सपीरियंसेस आपने Yeah. क्या किए। सो ये एक्सपीरियंस आप अपने गेन करें। लोग रोकेंगे आपको, आपको नहीं पता, जब मैं डिजाइन से कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, मेरे अपने क्रिटिक्स लगते हैं, ओ ये नहीं कर सकता तो ये नहीं अच्छा होगा। डिजाइनिंग में देखा, कोरियोग्राफी में चले गया तो डिजाइन खराब हो गई है, डिजाइन से एक्टिंग में चले गया तो ये खराब हो गई है। अरे यार कुछ खराब नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे हर बंदे के अंदर लिमिटलेस ऑप्शंस हैं। आप किसी की लिमिट्स पे बिल्कुल ना माने। ये जो आपको लिमिट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगियों में लिमिट्स हैं, वो खुद नहीं गौर कर पा रहे, तो आपके ऊपर फंस गए। आप उनको परवाह ना करें, आप अपनी जिंदगी खुल के जिए। ये तो मोटिवेशनल टॉक हो गई। आई फील लाइक आई एम इन अ टेड टॉक। इट्स अमेजिंग। अच्छा, एक सवाल आया है कि डिजाइनर बनने के लिए कोर्स लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल डिजाइनिंग है। कोर्स। जैसे जैसे आपने डॉक्टर बनना है तो पढ़ना जरूरी है, जिस तरह आपने लॉयर बनना पढ़ना जरूरी है, आपको फैशन में भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये भी एक प्रोफेशन है, और इसके अंदर तालीम हासिल करना बड़ा जरूरी है। और तालीम के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। तालीम हासिल करना हर चीज में जरूरी है। आपको तालीम हासिल करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो कि आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग है, या मम्मी एंड डैडी के पास बहुत ज्यादा पैसा है कि आप डिजाइनर बन जाएंगे, इससे मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिजाइनर बन जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए एक इंटरेस्टिंग बनेंगे, मगर आप लोगों से बोर हो जाएंगे। क्रिएटिविटी एक चीज होती है, क्रिएटिविटी को उसको स्किल में डिजाइन बनाना बहुत या जरूरी होता है। अपने आप को एजुकेट करें, जरूर करें। अगर डिजाइन में नहीं तो किसी और चीज में पढ़े लिखें जरूर। हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग और पढ़ लिख जाएं तो हमारा क्या किस्मत हो यार, हमारी क्या फ्यूचर हो। हमारे पास हर चीज है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एक यूथ है जिसके अंदर एक ऐसा जज्बा है जो पूरी दुनिया में नहीं है। पढ़ें लिखें, और प्लीज नेगेटिव होना बंद कर दें। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इतने, पता नहीं क्यों, मैं अपने पे कम देखता हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस बड़े लविंग हैं, बट पीपल स्टार्ट बिकमिंग वेरी नेगेटिव टू ईच अदर। छोड़ दें नेगेटिव, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने आप पे और पॉजिटिव रहने पे, और लेट पीपल लिव एंड लेट देम डू देयर थिंग। यार फोकस ऑन योरसेल्फ। one of my friends commented, she's like, it just want to tell Farheen to meet me. I mean, I will meet you when I have time. I'm busy with work. Okay, somebody's asking, do you prefer acting or designing? I prefer living. I prefer living. And I in my living I do designing. I'm a son, I'm a brother, I'm a actor, I'm a director, I'm a creative agency owner, I'm a teacher, I'm a motivational speaker. I live. I love design. It's my Amazing. passion, but my life is my passion. So ये हर चीज अगर मैं ना प्रेफर करता ना, मैं करता ही ना। और मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं अपनी नई कलेक्शन पे काम कर रहा हूँ। आई कैंट वेट टू शो यू गाइस। It's one of my favorite collections. So yeah, I love to live.
Speaking of your favorite collection, Sarah's asking, tell us what design of yours you have liked the most and what inspired it. Here's the thing about ये question कि लोग कहते हैं what is the design you like the most? It's like saying कि आपको अपना कौन सा बच्चा बच्चा सबसे अच्छा लगता है, आप बता ही नहीं सकते। तो secretly सबका एक होता है, सीक्रेटली होता है। वो secretly होता है, मगर मैं वो secret बता नहीं सकता। और मुझे क्या इंस्पायर करता है? जिंदगी। मैं ये किताबें नहीं खोलता और देखता ओ यार ये अच्छा है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरी आंखें खुली होती है, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, बहुत ज्यादा। अगर मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके पीछे पेंटिंग्स कितनी है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन सी पेंटिंग के नीचे बैठी है मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी एंट्री कैसी है मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज वो मेरे इर्द गिर्द चीजें हैं। अगर मैं आंखें उनके ऊपर बंद कर लूंगा तो इस कॉन्वर्सेशन का फायदा नहीं है। आप ऑब्जर्व करें और वहीं से आपको इंस्पिरेशन आ जाती है। तो मैं जिंदगी को देखते हुए बड़ा इंस्पायर होता हूँ, और मैं शौकीन भी बहुत हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ, उन चीजें देखूं। Do you think studying fashion design here in Pakistan is worth it? अरीबा ने सवाल किया है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैंने भी यहाँ से पढ़ा है और मैं समझूंगा कि बिल्कुल वर्थ इट है। फैशन हो या जो मर्जी हो, जब आप बाहर से भी पढ़ते हैं आपको कहते हैं ना, यू मस्ट थिंक ग्लोबल बट यू मस्ट एक्ट लोकल। एंड लोकल एक्ट करने हम्म। के लिए फिंगर ऑन द पल्स होना बड़ा जरूरी है कि हमारे लोग क्या चाहते हैं। अगर हम कपड़े बनाना शुरू हो जाएं जो ओ यार ये पेरिस में बड़ा चल रहा है और ये लंदन में बड़ा चल रहा है और ये न्यूयॉर्क में बड़ा चल रहा है, उसका क्या फायदा भाई? हमारे सड़कों कराची और लाहौर और गुलबर्ग और क्लिफ्टन में तो नहीं चल रहा ना, पेशावर में तो नहीं चल रहा। हमारी बहनें और भाई जो हैं वो सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, वहां तो नहीं चल रहा। वहां तो हमारी कुछ और चीजें हैं। तो अपनी फिंगर ऑन द पल्स यहाँ रखना बड़ा जरूरी है, और ये आपको पाकिस्तानी फैशन स्कूल्स में मिलेगा भी। सो डोंट इग्नोर योर कंट्री, डोंट इग्नोर योर मार्केट एंड डोंट इग्नोर योर पीपल। अपने लोगों को इग्नोर ना करें। 220 मिलियन बंदा है अनऑफिशियली पाकिस्तान में, 220 मिलियन। और हमारी सबसे यंग नेशन है, 50% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। बहुत बड़ी Yeah. कौम है हमारी, और ये कौम जोर से निकलने वाली है। इनके लिए चीजें बनाएं, अपने पाकिस्तान के लिए चीजें बनाएं। And then Hassan, how do you think our like our culture or our clothes are like accepted and like received in the US या जहाँ पे भी because I have seen that you also traveled to the US and अभी जो आपने अपनी friend का dress design किया था for her wedding, she was also in New York. How do they receive Pakistani culture and methods? Just like they would receive Japanese culture or they would receive Spanish culture, it is our culture, and it should be received the way it is, with its wholeheartedness for its beauty. मैं एक पहला डिजाइनर हूँ आई थिंक जो वोग, अमेरिकन वोग के अंदर अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए अब मेंशन किया गया हूँ, और मैं इसके बारे में बहुत प्राउड हूँ कि मैं पाकिस्तान का कल्चर वोग तक ले जा चुका हूँ। भाई मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि वो न्यूयॉर्क में क्या पहन रहे हैं, मैं तो अपने कपड़े लेके जाऊंगा। उन्होंने उसको किस तरह ट्रांसलेट करना है अपने कपड़ों में, Yeah, वो उनका काम है। हमारा काम है कि yeah, हम अपनी बेस्ट ऑफ जो हम जानते हैं, बिकॉज मेरी फिंगर ऑन द पल्स लाहौर, कराची, लाहौर, पेशावर, गुजराबाद, सियालकोट, मुल्तान इधर है, बिकॉज मैं यहाँ का हूँ। yeah. और मैं इसी तरह के कपड़े बनाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो पहनना चाहता है वो पहनेगा, और जो नहीं पहनना चाहता उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है वो फैशन डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ तो आपकी तारीफ कर रहे हैं एंड कुछ बाकी कह रहे मैं एक ने बहुत महंगा पूछा। हूँ, जो I was सारे trying to कह रहे कि ignore मैं those, बहुत but महंगा हूँ। okay. इट्स ओके, आप लोग कह रहे हो कि मैं महंगा हूँ। हाँ, आई डोंट थिंक मैं दैट महंगा हूँ, अभी मुझसे बहुत ज्यादा महंगे और डिजाइनर्स हैं। मगर इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी मैं एक और ब्रांड शुरू करने वाला हूँ। मैं उसका नाम Oh नहीं भी my बता God, there's सकता, more stuff मगर मैं coming. यहाँ मैं एक्सक्लूसिव ये जरूर दूंगा इनको, बिकॉज उन्होंने बड़ा प्यारा मेरा इंटरव्यू किया है कि आई एम अबाउट टू लॉन्च समथिंग for people who are able to afford my things on a regular basis. So keep an eye out for it. I will most definitely get an exclusive story out of you for this later when we're not live in front of so many people. But thank you for sharing that. And then somebody's asking from where do you suggest we get designer training or education? So I'm assuming they're asking about like Pakistan. Pakistan Institute of Fashion Design is the premier educational institution for fashion in Pakistan. मैं यहाँ से ग्रेजुएट भी हुआ हूँ और मैं इसके अंदर बड़ा बिलीव करता हूँ। बाकी स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास ढेर सारे और ऑप्शंस हैं। आप जाके जरूर देखें। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा, पर उसके अलावा there's BNU which I think is amazing. There's also Indus Valley in Karachi that's amazing. There's AIFT in Karachi that's also amazing. इस तरह तरह के स्कूल्स हैं। देखिए जी, फैशन की हमें बड़ी जरूरत है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिजाइनर की हमें बहुत जरूरत है, बिकॉज हम एक टेक्सटाइल नेशन है, और इस टेक्सटाइल नेशन को आगे बढ़ने के लिए जब तक हम वैल्यू एडिशन कपड़े नहीं बनाएंगे हम फंस जाएंगे। हम पहले फंसे हुए, हमें इसको आगे निकलने के लिए सिनर्जी बिटवीन डिजाइन एंड टेक्सटाइल करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें आप जैसे लोग और चाहिए।
और आप लोगों के पास जो आइडियाज है उसकी अगर सही ट्रेनिंग हो, यार इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। डू यू टीच डिजाइन? कोई पूछ रहा है। आई थिंक यही रह गया कि अब आप पढ़ाना भी शुरू कर दें। मैं एक्चुअली अपनी एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, इट्स कॉल्ड द HSY मेंटरशिप प्रोग्राम। हम हर साल में 2 That's true. मेंटरशिप प्रोग्राम्स करते हैं। इट्स फ्री, यू हैव टू राइट एंड सेंड अस योर सीवीज, वी सिलेक्ट यू, आप आते हैं, हम आपको डिजाइनिंग भी सिखाते हैं, आपको मार्केटिंग भी सिखाते हैं, आपको बोलना भी सिखाते हैं। मेरा कोई फायदा नहीं है अगर मैं आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाऊं, कोई फायदा नहीं है। एंड आई बिलीव दैट मुझे बताना आपको बड़ा जरूरी है, तो हम एक HSY मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। आप प्लीज आइए एंड जॉइन अस। I'm sorry, there's like मेरे घर के बाहर अजान हो रही है. I hope it's not too loud for you guys. No, I think it's, if we can take a little break for azan ज्यादा अच्छा है। हम लोग अजान पे Okay, जरा 1 yeah, मिनट let's रुक take a जाएं, 2 minute तो हम break. लोग we'll just stay quiet for a little while. Yeah, yeah, sure. Okay. Okay, so loads of questions coming in about, whether your brand caters to middle class or lower middle class people. I think you already spoke about that a bit, but if अगर आप दोबारा से बोलना चाहते हैं. और फिर किसी ने पूछा है internship process, if they can intern at your brand. Yes, they can intern at our brand. We always provide internship. If you are interested in interning, you just have to go to the World of HSY Instagram or email us at info@theworldofhsy.com. We are always looking for we're always looking for interns. यार आप रहते किधर हो? आप where do you live? Because आपके पीछे जो अजान दे रहे थे वो इतनी खूबसूरत अजान थी, उसको सुनने का Yeah. एकदम it was beautiful, बड़ी कमाल की अजान थी। So I'm in Gulstan